السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا ماہتاب عطا بدر پہلے صفا معدن اتفاق سید الاسفیاء جلوہ حق نما اقصی مہر خدا صاحب حلقہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا درود و سلام کا حسین حقیقت پیش کریں، بابا سے بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی علیہ نبی بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے فتوانا تیرا۔ سربلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء مند ہے آنکھیں ہوئے تلوا تیرا، اولیاء مند ہے آنکھیں ہوئے تلوا تیرا۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب آنے والا مہینہ ربیع الاخر جس کی 11 تاریخ کو نسبت ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثوں میں آپ کا مرتبہ بلند و بالا، آپ کا قدم تمام اولیاء اللہ کی قدموں پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار مراتب کمالات عطا فرمائے ہیں۔ آپ حسنی حسینی سید تھے، آپ کا نام اسم گرامی عبدالقادر تھا، لقب غوث اعظم محی الدین وغیرہ لقبات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو عطا ہوئے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت نسبت و وسیلے کی قائل ہے، اور اسی نسبت و وسیلے کی بنیاد پر آج تک ہم زندہ بھی ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، ورنہ بذات خود سر سے لے کر پاؤں تک ہم تو گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں۔ آج اگر ہم باقی بھی ہیں، ہمارا وجود قائم بھی ہے، تو یہ ان اکابروں کی نسبتوں کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وسیلے سے، ان کی نسبتوں کے صدقے میں گویا کہ ہم زمین پر قائم ہیں، اور یہی وہ اکابر بزرگان دین تھے جن کی بنیاد پر آج بارش بھی ہو رہی ہے، آج زمین سے سبزہ بھی اگ رہا ہے، آج اگر گھر میں رزق پہنچ بھی رہا ہے تو ان اکابروں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اور وسیلے سے ہم سب کو اسلام پر قائم بنائے رکھیں، کیونکہ جس ماحول سے ابھی ہم گزر رہے ہیں بڑا پرفتن دور ہے، اور اتنا پرفتن دور ہے کہ اگر گھر کے ذمہ داروں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم آزاد ہیں اور اسی طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے، تو یہ جو روش ہم نے ابھی بنائے رکھی، یہ روش ہمیں زمین پر پٹک کے چھوڑی، اور
اور जिस माहौल से अभी और जिन फितनों के दौर से हम अभी गुजर रहे हैं, ये इतना पुरफितन दौर है कि इस पुरफितन दौर में अपना ईमान बचा लेना ये सबसे अहम और जरूरी काम है। आज लोग कहते हैं कि हजरत यहाँ वहाँ की बात न करें, माहौल बड़ा पुरफितन दौर है, और ये समझे कि इत्तेहाद की बात करें, तो हम आपसे ये बात करेंगे कि इससे ज्यादा तो पुरफितन दौर और इससे ज्यादा तो तकालीफ तो सहाबा किराम ने उठा ली थी। आज यहाँ जितने बैठे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि आपने इस्लाम के लिए अपनी आंखें दी। सहाबा तो वो थे जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी आंखें दे दी थी। हालांकि वजाहत के एतबार से, खूबसूरती के एतबार से इनसे बढ़कर खूबसूरत कौन था। हालांकि अपने खूबसूरत रुखसारों को अगर किसी ने कटवाया है, न औलाद के लिए, न माल के लिए, न दुकान के लिए, इन लोगों ने अपने खूबसूरत रुखसार में से आंखें निकलवाई है तो इस्लाम के लिए, हाथ कटवाए हैं तो इस्लाम के लिए, अपने पैरों को कटवाए हैं तो इस्लाम के लिए, अपने आप को तेल के हवाले कर दिया है तो इस्लाम के लिए। अलगरज सहाबाए किराम तो वो थे जिन्होंने सब कुछ इस्लाम के खातिर किया। आज कुछ न करके भी हम ये कह रहे हैं कि हालात बड़े कठिन हैं, और हालात का तकाजा ये है कि हम गोया के भाई भाई के नारे लगाएं। तो याद रखना, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है, मगर इत्तेहाद से मुराद इश्क नबी की बुनियाद पर इत्तेहाद, नबी पाक के नाम पर इत्तेहाद, हुजूर की मोहब्बत पर इत्तेहाद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम पर इत्तेहाद, सहाबा, अहले बैत, औलिया कामिलीन और सालिहीन की मोहब्बत पर इत्तेहाद। इससे हटकर न कल इत्तेहाद समझ में आया था, न आज समझ में आएगा, न क़यामत तक समझ में आ सकेगा। क्योंकि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आज हर दिन कोई न कोई फितना उठ रहा, और ये फितना हमें आवाज दे रहा, हमें जगा रहा, और गफलत की नींद से जगा रहा। जो मुहद्दिस आज़म हिंद ने कहा था कि सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो, जो कौम के सोती रहती है तकदीर भी उसकी सोती है। आज अगर इसी अंदाज से सोते रहे तो इमाम अहमद रजा आज भी हमें जगा रहे हैं, और जगा कर कह रहे हैं कि सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आज क्या वजह है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों के खाके और आप पर गुस्ताखियां बढ़ती चली जा रही है। आज आए दिन कोई न कोई दिन सुबह आंख खुली और खबर आती है कि आज फला बदबख्त और बलदुल हराम ने गोया की गुस्ताखी कर दी। बात क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर हमले हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? याद रखना, अगर यही दिन रोजाना सुबह उठते वक्त यही खबरें हम तक मौसूल होती रही कि आज फला ने गुस्ताखी कर दी, आज फला ने गुस्ताखी कर दी, और आज कल रात जो गुजरी है उसमें जो नबी पाक की गुस्ताखी हुई है और जो जुमले इस्तेमाल हुए वो गोया के समीप पर खड़े होने के लायक नहीं है। अगर एक आदमी अपने अंदर इश्क की चिंगारियां रखता हो, एक आदमी जो हुजूर से इश्क और प्यार करता हो, वो तो सुन भी नहीं सकता है। बात ये है, ये गुस्ताखियां बढ़ क्यों रही है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में इस अंदाज से गुस्ताखियां क्यों हो रही है? ये ज़माना और उसकी रविश बता रही है कि वक्त आखिरी आ चुका है, क्योंकि अब कुफ्र सर चढ़ के बोल रहा, और जब कुफ्र सर चढ़ के बोले ना तो रब के अज़ाब का इंतजार करो। अब करीब है कि अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आएगा, क्योंकि हम तो बेबस हो चुके हैं, हम मजबूर हो चुके हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। दिल की जान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया के इस जहान की जान थे, आज आप पर गुस्ताखियां करके दिलों पर ठेस पहुंचाई जा रही है, और इस्लामी अहकाम का कहीं मजाक उड़ाया जाए, कहीं कुरान को तब्दील करके उसके एडिशन को छाप कर और उसके गोया के उसे झपका कर घरों घरों में तस्लीम किया जा रहा, कहीं कुरान की आयतों को तब्दील किया गया, कहीं कुरान का तर्जुमा तब्दील किया गया, कहीं इस्लामी अहकाम को मजाक बनाया गया। मजाक इस तरह से कभी दाढ़ियों को, कभी दाढ़ी को गोया के सोशल मीडिया के जरिए और गोया के सोशल मीडिया के जरिए और न्यूज वगैरह पर आकर गोया के दाढ़ी को कभी मजाक बनाया गया, कभी बुर्के को मजाक बनाया गया, कभी इस्लामी तलाक को मजाक बनाया गया, कभी कत्ल को मजाक बनाया गया। ये तमाम मजाक इस्लामी अहकामात के मजाक
یہ بتلا رہے ہیں کہ وقت قریب آ چکا ہے کہ ہم اس دلدل کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں سے اپنے بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہے. جنہوں نے اپنی داڑیاں اسلام کے نام پہ سفید کر دی ان کو تو مبارکباد ہے. اب اپنا اسلام بچا کر جائیں، ورنہ یاد رکھیں اگر اسلام نہ بچا، مغفرت نہ ہوئی، بخشش نہ ہوئی، تو آپ کا 65 سال زندگی گزار دینا، نام عبداللہ رکھ دینا، نام محمد رکھ دینا، کوئی کام نہیں دے گا. عقل مند آدمی وہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک، یعنی کب تک جب جائے تو ایمان ساتھ لے کر جائے. آج چاروں طرف ایمان کے لٹیرے کھڑے ہیں. وجہ یہ ہے ایمان بچائے کیسے جائے، ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے. اگر آج ماں باپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان کی حفاظت اسکولوں میں ہو جائے گی، آج اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ جس 24 گھنٹوں کے اندر 6 گھنٹے سونے کے نکال کر آپ جو 14 گھنٹے اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج رہے ہو، ٹیوشن کے نام پر جو مال خرچ ہو رہا ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ ٹیوشنوں میں تربیت ہو جائے گی، اسکولوں میں تربیت ہو جائے گی، تو میں آپ سے سوال کرتا چاہتا ہوں کہ کون سی تربیت کی آپ بات کر رہے ہو؟ جو بچہ آپ کا کالج میں گیا، لاکھ 1.5 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ کا خرچ کر کے گیا، جسے ابھی یہ پتا نہ ہو ماں باپ کی تعظیم کیا ہے، جسے ابھی یہ پتا نہ ہو کہ بڑوں کے ساتھ کس انداز سے بات کرنی ہے، وہ بچہ اسلام کیا سیکھے گا، اسلام کے احکام کیا سیکھے گا؟ لہٰذا اگر ماں باپ نے یہ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے بچوں کو کہ اسلام میں اس گویا کے اسکولوں میں تربیت ہو جائے گی، تو اسکول میں تربیت کا یہ خامہ خیالی اپنے دماغوں سے نکال دینا. آپ کو خود تربیت کرنی ہوگی. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ بچوں کی سب سے پہلی درسگاہ، بچوں کی سب سے پہلی تربیت کا اور بچوں کے سب سے پہلا مرکز ماں باپ کی گود ہے. جہاں سے اگر اس نے تربیت پالی تو سب کچھ صحیح سلامت رہے گا. اگر یہی کی تربیت سے خالی رہا تو یاد رکھنا یہ ایمان آج سے نکل جائے گا، اسلامی دولت آج سے نکل جائے گی. اگر آج آپ بڑے ہو چکے ہو، آپ کے بچوں ہیں، تو آپ اپنے بچوں کی فکر کریں، کیونکہ آج ایمان کے لٹیرے چاروں طرف سے صرف ایک ہی کاوش پر لگے ہوئے ہیں، کسی طرح سے اسلام ان کے دل و دماغ سے نکال دیا جائے. اگر آج ایک ماں باپ نے اپنے بچوں کی صحیح انداز سے تربیت نہ کی تو یاد رکھنا آج وہ دن دکھائے گا کہ جو تمہاری سوچ و فکر میں بھی نہ ہوگا. لہٰذا آج کی مصیبت تو کوئی مصیبت نہیں ہے، اس سے بڑی مصیبت تو یہ ہوگی کہ ایمان کے بغیر آپ قبر میں چلے جاؤ. لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرو اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو. آج جس انداز سے آپ گھر کی فکر کر رہے ہو، اس کے فیوچر کی فکر کر رہے ہو، تو سب سے بڑا فیوچر تو یہی ہے کہ آپ اس کی ایمان کی فکر کرو کہ وہ ایمان لے کر بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا. کیونکہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور جو ماحول لوگوں نے برپا کیا چاروں طرف سے، جو اسلام اور مسلمانوں کو مارنے کی سازشیں ہو رہی ہے اور بنائی جا رہی ہے، وہ کسی کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے. اخبار اس سے بڑے بڑے مساجد، مدارس، خانقاہ، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. الغرض ہماری زمینیں، ہمارے قبرستان، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہاتھ پر ہاتھ کھڑے بیٹھے ہو اور یہ انتظار کر رہے ہو کوئی آئے گا، کون آئے گا، اس کا انتظار کر رہے ہو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتا رہی ہے کہ غوث پاک جیسا بیٹا پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. آپ نے سیب کا واقعہ تو سن لیا اور سیب کی بات تو سب کو سنا دی، تقریروں میں سنا دی، سیب کی بات ہر جگہ سنا دی. میں پوچھنا چاہتا ہوں سیب کی بات سے آپ نے نتیجہ کیا لیا؟ وہ سیب جو آپ نے کھا تو لیا تھا نہر سے، مگر جب پہنچے یاد آ گیا کہ بغیر اجازت کے کھایا ہے، تو آپ نے باغ تلاش کیا کہ کس باغ کا یہ سیب تھا. جب اس باغ تک پہنچے اور اس مالک سے معافی مانگی تو مالک نے کہا کہ بڑا نیک بیچا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سیب کے لیے اتنے دور سے معافی مانگنے آیا. تو آپ نے کہا معافی کی صورت یہ ہے کہ میرے باغ میں کام کرو. آپ کام کرتے رہے. پھر جب مدت پوری ہوئی پھر آپ نے کہا اب تو آپ مجھے معاف کر دے. کہا آپ اتنے مہینے اور آپ کو باغ میں کام کرنا ہے. آپ باغ کو صاف کرتے رہے، باغ کی صفائی کرتے رہے، درختوں میں پانی ڈالتے رہے، درختوں کو کہیں کہیں سے کاٹتے رہے. جب 2 مہینہ بھی پورا ہوا آپ نے کہا اب اجازت دے. کہا تیسری مرتبہ اتنے مہینے تک آپ کو باغ صاف کرنا ہے. الغرض تیسری مرتبہ بھی آپ نے باغ صاف کر دیا. جب مدت پوری ہوئی آپ نے کہا اب تو معاف کر دے تاکہ قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو. الغرض جب تیسری مرتبہ معافی کے لیے گئے تو وہ جو باغ کے مالک تھے انہوں نے کہا اب تیسری شرط یہ ہے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کریں، مگر سنیں میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، آنکھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، آپ شادی کرو گے. اگر ڈر تھا، خوف
تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. آپ نے کہہ دیا مجھے شرط منظور ہے, میں آپ کی بیٹی سے نکاح بھی کر لوں گا. جب آپ نے شرط کو مان لیا اور جب نکاح ہوا, آپ مخصوص کمرے میں جب پہنچے شب دفاع کی رات, آپ نے کیا دیکھا؟ آگے سلامت ہے, ہاتھ سلامت ہے, پیر سلامت ہے, آگے نکلے آئے اپنے سسر کے بعد. کہا آپ نے کہا تھا آنکھ نہیں ہے, آپ نے تو کہا تھا ہاتھ نہیں ہے, آپ نے تو کہا تھا پیر نہیں ہے. کہا سن, میں نے اس لیے کہا تھا آنکھ سے میری بیٹی نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا ہے, ان ہاتھوں سے میری بیٹی نے کبھی ظلم نہیں کیا ہے, اور پیروں سے چل کر میری بیٹی کبھی گناہ کی طرف نہیں گئی ہے. اس انداز سے اس کے ہاتھ, اس کے پیر, اس کی آنکھیں محفوظ ہے. اگر جب گئے اور جا کر جب میلاد ہوا, اور میلاد کے بعد 9 مہینے کے بعد جو بچہ اس وطن سے باہر آتا ہے نا, اسے پوری دنیا عبدالقادر کے نام سے جانتی ہے, اور اسی بچے کو دنیا غوث اعظم بھی کہتی ہے, محی الدین بھی کہتی ہے. لہٰذا آج اگر چند فلسفوں کو 11ویں کی نیاز سمجھ میں نہ آتی ہو تو ان وقتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اسرائیل کا مال تو پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہو, اگر بات غوث اعظم کے نام کیا جائے, بات اگر نسبت کیا جائے تو آپ کو چیڑ محسوس ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ چیڑ کس بنیاد پر ہے؟ آپ اسرائیل کی پروڈکٹ کو کھا رہے ہو, پی رہے ہو, یہ جائز ہے, مگر غوث پاک کی نیاز جس نیاز پر غوث پاک کا نام لیا گیا ہو, فاتحہ پڑھا گیا ہو, قرآن پڑھا گیا ہو, منقطبتیں پڑھی گئی ہو, وہ گویا کہ نبی پاک کی نعتیں پڑھی گئی ہو, اس کے بعد اگر عوام میں اس کھانے کو کھلایا جائے تو آپ کے نزدیک وہ کھانا جائز نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ڈبل تھوڑی سی آپ لائے کہاں سے ہو؟ الغرض بات صرف اتنی ہے کہ ماں باپ کا نیک ہونا ضروری ہے. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں, اگر آپ یہ کہہ کر چھوڑ دے رہے ہو کہ اسکولوں میں تربیت ہو جائے گی, تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو آج اسکولوں کا حال کیا ہے. آج صرف پیسے لوٹے جا رہے ہیں, دوسروں کے نام پر کمایا جا رہا ہے. اسکولوں کا حال تو یہ ہے کہ آج مدارس اب ہو چکے ہیں, اور اتنے ٹھپ ہوئے کہ 2 گھنٹے کا مدرسہ اب 1 گھنٹے کا ہونے لگا, اور 1 گھنٹے سے آدھے گھنٹے تک آ گئے. کل تک تو یہ تھا کہ صبح کی پڑھائی بند کر کے دوپہر کا مدرسہ کیا جاتا تھا, مگر اب تو دوپہر میں ٹیوشن, رات میں ٹیوشن. تو بات یہ ہے کہ مدرسہ چلے گا تھا, بچے اسلام سیکھیں گے تھا. مغرب کے بعد کا جو وقت 1 گھنٹے کا اسلام کے نام پہ بچا تھا کہ مغرب سے عشاء تک اسلامی تعلیمات دے دی جائے, مدنی قاعدہ درست کر دیا جائے, قرآن و مخارج کو درست کرا دیا جائے, صرف 1 گھنٹہ آپ سے مانگا تھا, مگر اس 1 گھنٹے کو بھی آپ نے ٹیوشن کے نام پر بچوں نے وقت کر دیا. اور ایسا کیا کہ آج مدارس صبح میں بھی خالی نظر آتا ہے, دوپہر میں بھی خالی نظر آتا ہے, بعد مغرب بھی خالی نظر آتا ہے. جس قوم کی یہ روش ہے اور وہ قوم صبح میں اٹھ کے پھر روئے اور یہ کہے کہ گستاخی ہو گئی, اور اس بات کو گالی دے دی گئی, نبی پاک کو گالی دی گئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اپنے بچوں کو کیا تربیت دی؟ یہ جذبہ, یہ عشق جو آپ کے دلوں سے نکالا گیا, اس انداز سے تو نکلا ہے جو بچہ مدارس سے دور رہے گا, جس بچے نے کبھی قرآن ہاتھ میں نہ لیا ہو, اور جن نوجوانوں کو یہ معلوم نہ ہو الف سے لے کر یا تک کس انداز سے پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے, اس کے فرائض کیا. آج تو ہم اختلافی باتوں میں پڑے ہوئے, فلاں قادری ہے, فلاں اطاری ہے, فلاں شرفی ہے, فلاں حزبی ہے. ابے بدبختو, اس کام کے لیے ہم یہاں آئے ہوئے تھے کہ آپ ان سلسلوں میں پڑ گئے. میرے پیر و مرشد نے کہا تھا یہ تمام سلسلے ندیاں ہیں اور اس کی منزل اور سمندر کا نام مدینہ ہے. یہ ساری نہریں ہمیں مدینے کی جانب لے جائے گی. جو سلسلہ تمہیں مدینے تک پہنچا دے, آنکھ بند کر کے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دے, مگر جہاں مدینے کا راستہ کٹتا ہو ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے بھی اپنے آپ کو باز رکھے, چاہے وہ صحابہ کے گستاخ ہو, چاہے وہ اہل بیت کے گستاخ ہو, چاہے کسی طرح سے کسی کے بھی گستاخ ہو, ایسے پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے جس کا راستہ مدینے تک نہ پہنچتا ہو. ہم تو یہ قادری, یہ سلسلے جو بھی ہیں, یہ تمام سلاسل جو بھی ہیں اہل سنت و جماعت کے, یہ تمام نہریں ہیں, اس کے سمندر کا نام مدینہ ہے, اس کی منزل کا نام مدینہ ہے. یہ سب راستے ہیں, منزل ہماری مدینہ ہے. جو مدینے تک پہنچاتے ان تمام کے پیچھے پیچھے چلنے لگو, کیونکہ ہماری منزل مدینہ ہے. مگر آج نوجوان انہی اختلاف میں پڑ گئے, کوئی کہنے لگا فلاں صحابی بڑے تھے, کوئی کہنے لگا فلاں بڑے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس لیے آئے تھے کہ مشاجرات صحابہ میں آپ پڑھو, آپ کا تو کام یہ تھا کہ آپ یہ پوچھتے ہم سے کہ حضرت بتائیے نماز کا طریقہ کیا ہے, روزہ نماز کا طریقہ کیا ہے, ہمیں زکات کس انداز سے دینی ہے, ہم بزنس کر رہے ہیں, ہم دھندا
धंधा कर रहे हैं, आप हमें बताओ उसमें हलाल क्या है, हराम क्या है। आज हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई, लुकमे में एहतियातें खत्म हो गई। आज इसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो कौम हलाल और हराम की तमीज न मालूम हो और फिर लड़ाई लड़े, तो आपसी लड़ाई में हम सबसे आगे हो। आपसी लड़ाई का हाल ये है कि भाई भाई से 2-2 10 साल हो गए, बोलने के लिए तैयार नहीं। जमीन जायदादों के झगड़ों में हम 20-20 साल तक एक दूसरे से बेगाना रहते हैं, सलाम तक नहीं करते। यहाँ माफी सुन्नत थी, मगर हाल ये हो गया कि उल्टा उलमाओं को सिखाया जा रहा है। हजरत जुम्मा में बयान आप बड़ी हिम्मत से किया करें, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। आप गोया के माफी तलाफी और एकता की बात करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पे कौन सी एकता की? रोजाना दुकानों पर बैठ के मौलानाओं के खिलाफ आप बातें करो, मस्जिदों के खिलाफ आप बातें करो, मदारिसों के खिलाफ आप बातें करो, तो ये इख्तिलाफ आपको समझ में नहीं आता। और मस्जिद की वो तकरीरें जो कौम की इस्लाह के लिए की जाए, आपको समझ में आ जाती है। और गोया कि आप जो 24 घंटे चाय पर बैठ कर सिर्फ मशवरा देते हो, याद रखना, मशवरे से किसी कौम की तरक्की नहीं हुई है, न कल हुई है, न आज होगी, न कयामत तक होगी। चाय की चुस्की लेकर और नरम नरम बिस्तरों पे सोकर आप ये समझ रहे हो हम तरक्की कर लेंगे, हम बच जाएंगे, तो याद रखना, जो आग फिलिस्तीन तक पहुंचा है, वो आग यहाँ तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। लिहाजा वक्त से पहले अपने आप को सुधार लिया जाए, वक्त से पहले तौबा कर ली जाए, क्योंकि आज भी सूरज वहीं से निकलता है जहां से निकलता था, वहीं पर डूब रहा है जहां डूबता है, मगर जिस दिन जहां डूब रहा है वहां से निकलना शुरू हो जाएगा, तो याद रखना तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और उस दिन से आपकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। आज वहीं से निकलना है जहां से निकलता था, तो आज वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा कर ले। हालात बड़े नाजुक है, फितनों का दौर है, मस्जिदों को आबाद कर ले। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फजर से लेकर ईशा तक सबों का आलम ये है कि आधी सब तक मुकम्मल ना हो पाए, एक सब तक मुकम्मल ना हो पाए, और फिर बाजारों में तबसरा करें क्या होगा, क्या होने वाला है। पूछना चाहता हूँ, आपने दिन में कितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर, और नबी पाक के दीन की हिफाजत आपने कितनी की? वैसे कुछ तो आपने डाला, हराम और हलाल में तमीज ना करके। आपसे मैं पूछूं अगर, और ये सवाल कर दूं खड़े होकर कि आप मुझे बताइए, इस महीने के अंदर ईद मिलाद जो गुजरा, उस महीने में आपने कुरान कितनी मरतबा हाथ में उठाया? आप ताज्जुब करोगे जवाब में कि वाकई में हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम कुरान को अपने घर की अलमारी से उठाकर 2 आयत या 3 आयत पढ़ दे। आज दावत इस्लामी हर सुबह फजर की नमाज के बाद आपको ऐलान करती है कि 3 आयत पढ़ने का मामूल बना दे। अमीर अहले सुन्नत ने ऐलान किया, तरजीह दिलाई, क्यों दिलाई? क्योंकि जानते थे, पहचानते थे, और कौम की आदत उन पर आया है। वो जानते हैं कि आज कौम इतनी सुस्त हो चुकी है, जो कौम मदारिस से दूर हो वो कुरान कब उठाएगी? इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने रोक कर कहा था, आज तो कुरान हमने 2 वजह के लिए रखा, एक तो मैयत के लिए, और एक बेटी जब शादी के लिए ब्याह के घर से निकले तब उसको तोहफे में देने के लिए। याद रखना, ये कुरान मैयत पर यानी जब नज़ा की हालत आए तो सूरह यासीन पढ़ ली गई, और मर जाए तो सूरह मुल्क पढ़ ली। इसलिए कुरान रब ने नहीं दिया था, बल्कि उसके अंत से लेकर वन्नास की सीन तक अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें जीने का तरीका, तमाम चीजें अंदर आया रख दी है, अंदर मौजूद है। आपने उसे खोल के पढ़ाई नहीं है, सब कुछ उसमें मौजूद है। यानी हर उसको तर का बयान उसमें मौजूद था, हर कामयाबी के राज उसमें भी ना थे। आप पढ़ के तो देखते, बरकत क्यों ना आती? आज कुरान को छोड़कर बाबागिरी में लोग पड़े हुए हैं, लोग ताबीज़ात के मामले में पड़े हुए हैं। बड़ा गिरना बड़ा औरत को गोया कि आसिफ की बीमारी हो गई, और इस आसिफ के नाम पर कई बाबाओं ने धंधे शुरू कर दिए। कोई 10,000 की फीस लगा रहा है, कोई 20,000 की, कोई लाख तक की फीस लगा रहा है, और एक गोया के 1,000 से जायद चीजें मंगवाना, और मंगवा के फिर उस आसिफ को उतार देना, और आसिफ को उतार के ये कहना कि हम इतनी फीस लेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस कौम के पास कुरान से बड़ी ताबीज़ क्या होगी यार? आप कुरान की 2 आयतें तो पढ़ ले, आप 3 आयत पढ़ने का मामूल तो बना ले, इससे बढ़कर ताबीज़ कौन सी है? मगर आज आपने जब कुरान जैसी ताबीज़ और कुरान जैसी किताब को छोड़ा, तो आज बाबाओं के दर पे भागने की नौबत आपको आई। और ऐसे ढोंगी बाबा मौजूदा वक्त में बेशुमार निकले हुए हैं, और इतने ढोंगी बाबा निकले हुए हैं कि डराने में उनको वक्त नहीं लगता। और जब डरा दे और अक्ल पर आपकी बात बैठ जाए, तो आप अपनी बच्ची के लिए, अपने घर वाले और अपनी औरतों के लिए, अपने बच्चों के लिए न जाने क्या क्या कर देते हो, और उस मामले में आप इतने आगे बढ़ जाते हो। वो
मम्मी पापा मालदार हो जाता है और आपको खाली करके रख देता है। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपने कुरान को छोड़ा। काश आप कुरान को मामूल बनाते और रोजाना आप फजर के वक्त उसे पढ़ते, अपने बच्चों को बिठाते, 3 आयत तफसीर कुरान के साथ आप उसे मामूल बना ले, तो फिर आप देखें घर में बरकत ही किस अंदाज से आती है। मगर इतना याद रखना, अगर आपने ये तरबियत का अंदाज घर में ना बनाया और आप ये उम्मीद रखते हो कि कल उठकर ईमान देकर आपका बच्चा जाएगा, तो ये मुश्किल काम है। क्योंकि मौजूदा वक्त जिस हाल में हम जी रहे हैं बड़ा पुरफितर दौर है। इस दौर में ईमान बचा के चला जाना बड़ा मुश्किल काम है। लिहाजा वालिदैन को चाहिए, एक बात जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं, वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों के ईमान की फिक्र करे, अपने बच्चों के इस्लाम की फिक्र करे। क्योंकि आज हाल में सबसे मजबूत वही है जो इस्तेकामत के साथ ईमान बचा के चला गया। वरना मैं फिर कह रहा हूं, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने इस्लाम के लिए आंखें दी हो, जिसने इस्लाम के लिए अपने औलाद दे दी हो, जिसने इस्लाम के लिए हाथ कटवाए हो, जिसने इस्लाम के लिए अपना पूरा अंबा कटवा दिया हो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला की सरजमीन पर अपने 72 जानिसारों को, अपने खानदान वालों को, भांजे भतीजे, खुद अपने बेटे 6 माह की नन्ही से जान हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु तआला को कटवा दिया और इस्लाम के नाम पर पेश कर दिया। आज हमने इस्लाम के नाम पे क्या किया? सिर्फ नाम लिया। और फिर भी हम क्या जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं? हालात खराब है। हालात इतने खराब नहीं जितने पहले थे। आज तो फिर भी ठीक है कि हम गाड़ियों में सफर कर रहे हैं, आज भी फिर भी ठीक है कि हम गोया के इतनी नरम नाजुक तमाम नेमतों को हम खा भी रहे, पी भी रहे। बस वजह ये है कि शुक्र की आदत नहीं पड़ी, शुक्र की आदत नहीं पड़ी। शुक्र करना सीखे, क्योंकि जो कौम शुक्र नहीं करती उससे नेमतों को छीन लिया जाता है। लिहाजा अभी जो हालात है और दिन ब दिन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखियां हो रही है, तो उसमें तो हमारा मामूल ये होना चाहिए कि हर मोहल्ले में, हर घर में, हर घर के अंदर, हर चौराहे पर, हर बाजार में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गुफ्तगू करें। घर के अंदर एक माँ बाप, चाहे माँ हो या बाप हो, अपने बच्चे को लेकर बैठे और बैठकर सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स दे। रोजाना एक पेज, एक सफा या 2 सतर या 3 सतर ही दे, रोजाना एक वाकया, एक मौजज़ा ही बताए, मगर समझाए कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं ये वो नबी थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप जैसा हसीन, आप जैसा खूबसूरत, आप जैसा बेटा दुनिया को अता ही नहीं किया है। अलगरज दुनिया ने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज से पैदा किया कि हम बच्चे तो नजासत के साथ पैदा होते, आप तो खुशबू में लगते हुए, मुश्किल की खुशबू आ रही थी, नाक बुरी था, खतना शुदा, ये बातें बता और बतलाकर दुनिया को बतलाए। यही वो नबी थे जिन्होंने आकर इंसान को इंसानियत सिखाई, जिनको ये पता न था औरत का मकाम क्या है, जो अपने हाथों से बच्चियां जिंदा तरबोर करते थे। अगर आज बच्चियां मौजूद है और एक भाई बहन को बहन कह रहा है और एक बाप बेटी को बेटी कह रहा है प्यार से, और अगर आने पर उसकी पेशानी चूमता है, तो ये हुजूर का सदका है। ये बताया जाए और शान भी बताया जाए कि आप जैसा, यानी हमारा नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इस दुनिया में न कोई आया न आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बुलंद मर्तबा अता फरमाया था, कमाल अता फरमाया था, आपको तमाम मौजज़ात, तमाम कमालात जो 24,000 कमोबेश अंबिया किराम में मौजूद थे, अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम मौजज़ात, वो तमाम कमालात, वो तमाम महासी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया था। आप जैसा हसीन इस दुनिया में आया नहीं, आप जैसा खूबसूरत कोई आया ही नहीं, और आपकी खूबसूरती को जिब्रील न देख सके हो, आपकी खूबसूरती को हज़रत सिद्दीक़ अकबर की तिखी निगाहों से देखते हो। यानी आप फरमाते हैं कि हम आपके चेहरे पर निगाह जमा ही नहीं सकते थे। लिहाजा अपने बच्चों को बिठाकर हुजूर की शान उनके दिलो दिमाग में डाल दी जाए, ताकि अगर कोई बदबख्त नस्ल उठकर गुस्ताखी भी करे तो हमारी बच्चों की नस्लों से और हमारी नस्लों से और हमारे बच्चों के दिलों से इसके नबी को कोई कम न कर सके। वरना याद रखना, हालात बड़े कमजोर है। कामयाब वही है जो ईमान के साथ, इस्तेकामत के साथ कब्र तक पहुंच गया। क्योंकि अगर आप डगमगा गए, फिसल गए, तो याद रखना करबला हो, बदर हो, हुनैन हो, इसलिए कायम नहीं हुई कि आप चंद लम्हात के अंदर अंग्रेजी तालीम पढ़ के इस्लाम से मुतनफिर हो जाए। अगर आप इस्लाम से मुतनफिर हो रहे हो
और आपको दाढ़ी, टोपी, अमामा, कुर्ता, पैजामा, कुरान और कुरान की बातें, हदीस और हदीसों की बातें, इस्लामी अहकाम, इस्लामी हदीसें, इस्लामी कानून आपको समझ में नहीं आ रहा, तो याद रखना आप अपने दिमाग की सफाई करें। जरूरत है कि आप अपने आप की तरबियत करें। अगर समझ में आ रहा तो इसको लेकर जाएं, लहद में इश्क रुके शाह का नाम लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी कि चराग लेके चले। इसके अलावा कोई काम नहीं आएगा। हुजूर ही कब्र में काम आने वाले, हुजूर ही हश्र में काम आने, कुल सिरात पर हुजूर ही काम आएंगे, मीज़ान पर हुजूर ही काम आएंगे, आबे कौसर पर हुजूर ही खड़े होंगे। ना आपका कोई दोस्त आपको काम आने वाला है, ना आपके कोई रिश्तेदार आपको काम आने वाले। तो जो काम आने वाली जात है उसके दीन पर हम मुकम्मल अमल क्यों न करें। गुनहगार जरूर है, मगर ये उम्मत इश्क में के मामले में न कल कमजोर थी, न आज कमजोर है, न कयामत तक कमजोर रहेगी। लिहाजा इश्क हम अमल में होता है, याद रखिए हम अमल में कमजोर है। इश्क के मामले में आज भी, इश्क के मामले में आज भी हमारी रूह जवान थी, जवान है, वो जवान है। बस इतना हुआ है, जिंदा जिंदा हालात की तराजू में आकर हम इतने बेबस हो चुके हैं। जब जरूरत है कि तरबियत की जाए, मस्जिदों का शौकीन बनाया जाए, मदारिस का शौकीन बनाया जाए। अगर इसको आप ये समझ रहे हो कि ये तो गरीबों की तालीमों का हिस्सा, आज तो जान बनी है। कल तक तो हम आपको काफी बुजुर्गों से सुनते थे। अजमेर मोहल्ला जो है, अजमेर मोहल्ला, अजमेर शरीफ, उसके बगल में तालुम मोइनिया उस वक्त से चलता, जिसमें यूँ समझे कि ये बहार शरीयत, आपने किताब का नाम सुना, बहार शरीयत की जो मुसन्निफ है, उन्होंने वहाँ पढ़ाया, मुदर्रिस रहे, सिर्फ इस बुनियाद पर मुदर्रिस बने थे वहाँ के निस्बत। एक तो गरीब नवाज का आस्थान है, बगल में तालुम मोइनिया, मदरसे मोइनिया आज भी मौजूद है, मगर अब तो एक 2-3 कब्रों की शक्ल में रह चुका, पढ़ाई मफकूद हो चुकी है। अगर उस वक्त जब पढ़ाई चलती थी ना, उस वक्त सैयद गुलाम जिलानी मैत्री रहमतुल्लाह अलैह, उनको उनके उस्ताद ने भेजा था कि बेटा चंद रात के लिए वहां पढ़ो। और इसी तरह मौलाना सरदार अहमद साहब, ये आपसे नबी के बहुत बड़े मुहद्दिस में गुजरे, मुहद्दिस साहब भी कहा जाता है, ये भी जब पढ़ने आए थे तो हाल ये था कि आप तो दुनियावी तालीम में बहुत आगे जा चुके थे, अगर जब यहाँ दारुल मोइनिया में पढ़ने आए तो सूखी रोटी मैसर, रोटी के टुकड़े दिए जाते, तो समझो तंदूर वाली रोटी को भी कड़ा सूख चुकी होती। तो होता यह था कि सबको आधी आधी रोटी देते थे बच्चों को, उनके हिस्से में भी आती, वो प्रधान घराने से सरदार साहब, और जिस घराने से उनका ताल्लुक था उनकी खुराक ज्यादा थी, उनकी खुराक ज्यादा थी, तो आधी रोटी से उनका पेट नहीं भरता। तो होता यह था कि वहाँ बंगाली बच्चे भी पढ़ते थे, बंगाली बच्चों को चावल के अलावा रोटी भाती थी। वो क्या करते थे, उस्ताद से बचने के लिए रोटी को डाल देते थे किसी कप्पे, जो मैसर आता उसी से पेट भरते। तो उसी कपड़े से मौलाना सरदार अहमद साहब उठाते, साफ करते, उठाते, तब जाके वक्त का मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। तो दीन की तालीम को अगर कोई मामूली समझा हो, तो ये समझ रहा हो कि बस दीन को उनके लिए जो गरीब हो, वरना दुनिया और कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए जो गरीब हो, तो ये तफसील आपके दिमाग में जो अंग्रेजों ने डाली है, इस भूत को आप निकाल साफ कर दें, क्योंकि ये आपका जहन आपको वो तबाही में डालेगा, उस तबाही में डालेगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। कि आपकी आने वाली नस्लों की अब फिक्र करनी है, वो दौरा चुका, फिक्र करनी है, आपने तो बचा लिया। कल तक तो बात थी वहाबी, निजलानी, मुनाफिकों की, अब बात आ गई इस्लामी, अब तो बात आ गई है इस्लामी। सबसे पहले अपना इस्लाम, आपने अपने आप को मुसलमान का, मस्जिदों का खादिम का, और या अल्लाह का खादिम का, गुलाम का, और अपनी गुलामी को बचाए, क्योंकि वक्त बचाने का, और जिसने इस्तेकामत भी ना की, इस्तेकामत भी ना बता,
याद रखना आना पड़ेगा। बस बोलने की बात इतनी है आज का निचोड़, आप अगर ये समझ रहे हो कि बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तरबियत हो जाएगी, आप भूल जाए। आपके बच्चों की तरबियत आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। चेक करें सुबह से लेकर शाम तक क्या पढ़ा, कैसा पढ़ा, कहाँ गया था, मोबाइल में क्या देखा। अगर ये आदत आपकी है बच्चा बचेगा। अगर आपने आदत नहीं रखी, उसे उसके हाल पे छोड़ दिया, यही बेटा 25 से 27 साल की उम्र में आपको निकालेगा कैसे? क्योंकि आजाद ख्याल है, अंग्रेजों की तालीम मार देगा ना। और फिर आप तालीम ढूंढते फिरोगे कि मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाला। काश आप दीन की तालीम पढ़ा। हम मना नहीं करते, इस्लाम ने रोका ही। आपको 36 ज़बानें आती, अगर इस्लाम ने रोका होता तो आप सिर्फ अरबी पढ़ते, 35 ज़बान याद करते। मगर आपको इतनी ज़बानों पर ऊपर होना इस बात की दलील थी कि इस्लाम ने तालीम से नहीं रोका। इस्लाम कहता है चांद तक जाओ, सूरज तक पहुंचो। कहां तक जाना है? आप छोड़ रहे आसमानों को, तहकीक करो। कुरान तो हमारा कह रहा है अपना तदब्बर, अपना तफक्कुर, फिक्र करो, तदब्बर करो, अक्ल लगाओ, सोचो हमने जमीन में क्या रखा। जमीन में हमने खजाने छुपाए, हमने पहाड़ों में खजाने छुपाए। ये अलग बात है कि कुरान गैरों ने पढ़ के समझ लिया, उन्होंने फिक्र किया आज तेल उनके कब्जे में, पेट्रोल उनके कब्जे में, सारे खजाने उनके कब्जों में, और हम हो गए खाली हाथ। हालांकि कुरान ने हमसे कहा था पहाड़ों में गौर करो, चांद में गौर करो। आज चांद में कौन गया? चर्चे किसके? आप खुद मुझे बता, चर्चे किसके? हालांकि कुरान ने आपसे कहा था चांद में गौर करना, सूरज में गौर करना। जमीन के अंदर हमने खजाने रखे, वो खजानों से मुराद क्या थी? पेट्रोल के खजाने। खजानों से मुराद क्या थी? सोने चांदी के खजाने। खजानों से मुराद क्या थी? गैस की खजाने। ये सारी चीजें गैरों के हाथ में, क्योंकि हमने तफक्कुर न किया। इसी तफक्कुर का नाम आज दुनिया साइंस कह रही है। आज इसे ही साइंस कह रही है। और आज साइंस ने कुरान ही से सब कुछ सीखा, और जिसके पास कुरान आया था उसने कुरान को छोड़कर सब कुछ भुला दिया और गोया के इख्तिलाफ में पड़ गई। आज वक्त है मुत्तहिद होने का, वक्त है एक होने का, वक्त है कंधे से कंधा मिलाने का, वक्त है एक सब में खड़े होकर फिर उस आवाज को देने का कि फिर सब में खड़े हो गए। तो प्रयास न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा रहा। अगर आप फिर भी इन हालात से अभी भी हालात देखकर सबक और इबरत हासिल नहीं कर रहे तो मस्जिदों को वीरान करते चले जाओगे, मदारिसों को वीरान करते चले जाओगे, तो हालात इससे भी सख्त आने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्तिकामत के साथ इस्लामी जिंदगी, ईमानी मौत नसीब फरमाए। इस्लामी अहकाम पर हम सबको चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।